Okay, good afternoon, all of you. Now, today in this class, we are going to discuss. First of all, we have to. I'm discussing the things which we have discussed in the in the last class. So, in the last class, what we have discussed about the different types of instrument. Okay, different instrument हम लोगों ने discuss किए थे, which are used in the electrical circuit. Okay, electrical circuit में जो various components हैं, which we are using, we have discussed them. Now, the first one is your ammeter. Okay, the first one is your ammeter. Okay, the first one is ammeter. Okay, first one is ammeter. Now, ammeter is used for measuring the electric current. Measuring electric current. If somebody asks you what is ammeter, ammeter is the instrument which is used for measuring the electrical current. Then we are having the second one. This is the first one. The second one we are having the voltmeter. Okay, voltmeter को use करते हैं for measuring the potential difference. We can say it is used to measure the potential difference, or simply you can say it is used to measure the voltage flowing in the circuit. Then we are having the galvanometer. The third one is galvanometer. Okay, galvanometer is used for measuring the direction of the current. Okay, it is used to measure the direction of the current. Okay, so these are the three components which are used, which are generally used, and you should know about them. So the first one is the ammeter. It is used for measuring the electric current. The second one is the voltmeter, which is used to measure the potential difference, or we can say it is used to measure the voltage flowing in the circuit. The third one is the galvanometer. Galvanometer gives you the direction of the electric current. Usually two directions, means कि एक तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा. द करंट विल फ्लो आइदर एंटी क्लॉकवाइज और आइदर इट फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So these are the two direction of the flow of the electric current. Okay, so now today we are going to discuss about the potential difference. एक तो potential difference के बारे में discuss करना है. The second thing we are going to discuss about the electrical resistance. So let me write the heading first. So your first heading is about the potential difference. Okay, potential difference. Your first heading is potential difference. So now just imagine कि करंट बेटा कैसे फ्लो करता है. ओके, इमेजिन कि हाउ डज द करंट फ्लो, और जस्ट इमेजिन कि हाउ डज द वाटर फ्लो. या तो करंट का एग्जांपल ले लो या फिर वाटर का एग्जांपल ले लो. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ आइदर द करंट और द एग्जांपल ऑफ flowing of water, or you can take an example of the heat flowing in the body. So let me give you an example. Suppose let us consider two bodies. Say this is the first body, and say this is the second one. It is kept here and it is kept here. The first body, it is kept at higher potential. उसको कहां पे रखा है आपने? You have kept it at higher potential. And the second body you have kept it at lower potential. First body को आपने higher potential पे रखा है. Second body को आपने कहां पे रखा है? You have kept it at lower potential. Okay, it is kept at lower potential. Now, if we connect them with the help of a pipe, suppose we have connected them in this way. So then what happened? They contain water. Okay, they contain water. The first body contain water. Now what happened? The water will start flowing like this from first body to second body. Okay, that means the water is flowing from higher potential towards the lower potential. Second example, if I give you, suppose let me give you a body. Say this is the first body. ये फर्स्ट बॉडी है. Its temperature, say it is 80 degrees Celsius. The temperature of the first body is 80 degrees Celsius. Now suppose it is in physical contact with the second body.
say its temperature is 20 degrees Celsius. Now what happen? The heat will flow. Okay, the heat will flow. How does the heat will flow? कैसे flow करेगी? From the first body to the second body. Okay, for which time? Till the temperature of both the bodies become same. Okay, heat flow करती रहेगी. कब तक flow करती रहेगी? जब तक दोनों का temperature same नहीं होगा. Okay, so this is about the potential. Potential means के the energy. Okay, potential means के the energy which you are having or which the body is having for its flow. But when we talk about the electrical potential, when we talk about the electricity or when we talk about the electric current, then potential, the meaning is same, but we will define it in another way. So now see how I am defining potential difference. Suppose you are having a unit positive charge. एक unit positive charge है in the electric field. Electric field के अंदर क्या है आपके पास? You are having the unit positive charge and you want to move this charge from point A to B. एक unit positive charge है, it is kept at point A. यहाँ पे मैंने इसको रखा है से potential difference is denoted by B. Remember it. इसको मैंने कहा suppose एक unit positive charge को यहाँ पे क्या रखा है आपने? एक Q charge को place किया है. A Q charge is placed here. You want to move it from point A to point B. Point B पे लेके जाना है. Say this is your point B. Okay, this is your point B. So now what you have to do? Charge ऐसे ही move नहीं करेगा बेटे. So for the movement you have to apply force. क्या करना पड़ेगा? मुझे force लगानी पड़ेगी. For the movement of charge we have to apply force. And when we apply force, what type of force is that? It is a electrical force. क्योंकि जो charge है अपने around क्या करेगा? Electric field को create करेगा. Now we are applying a force on a charge. On applying force, we make that charge move. Okay, we are making that charge move. So it means के we are doing work. क्योंकि W equals to क्या होता है? W equals to F into D. Okay, remember, just see the logical part, conceptual part. Just see the conceptual part के how I am explaining it, and you have to remember it in a same way. You are having a point, you are having a positive charge. आपके पास एक positive charge है. कहाँ पर है? Electric field में है. What you want? You want to make this charge move. Suppose point A पे place किया है. Point A से आपने इसको क्या करना है? Point B तक लेके जाना है. So for that you have to apply force on this charge. क्या करना पड़ेगा? इस charge के ऊपर force लगानी पड़ेगी. तब जो ये charge है Q A से B तक move करेगा. ओके, ए से बी तक मूव करेगा. तो दैट मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज योर वर्क डन. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज द वर्क डन. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग वर्क. ओके, वी आर डूइंग वर्क इन द मूवमेंट फॉर मेकिंग द चार्ज टू मूव. चार्ज को मूव करवाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग वर्क. सो दिस वर्क डन, ओके, दिस वर्क डन is your potential difference. Okay, so if we want to define potential difference, you can define it in a simple way. Simple physics की language में अगर हम लोग बोले तो I simply say कि potential difference is the work done when we move a charge from one point to another in the electric field. Okay, जब आप electric field में किसी चार्ज को, एनी चार्ज, एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप मूव करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी कैन से कि वी आर डूइंग वर्क. तब हमने क्या किया? वर्क किया है. एंड दिस वर्क इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ दिस, सो पोटेंशियल को मैथमेटिकल वे में अगर हम लोग लिखें तो हाउ डज वी राइट इन अ मैथमेटिकल वे? सो मैथमेटिकल वे इट इज डिनोटेड बाय वी. Potential difference is denoted by V, and in a mathematical way we will write it F W upon Q. Okay, W upon Q. It is given by W upon Q and its unit is volt. Its SI unit is volt. Now let us suppose you want to define this volt. अब इस volt को define करना है. Volt is what? Volt is nothing but it is the
इट इज द एसआई यूनिट और इट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट. आई वांट टू डिफाइन दिस वोल्ट, तो सिंपली आई एम हैविंग द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है. आई थिंक ये ट्रिक मैंने पहले भी तुम्हें बताई है. यू आर हैविंग अ फॉर्मूला. सबको क्या करना है? 1 1 करना है. सो आई मेक इट दिस 1 वोल्ट. W measured in joules, so I make it 1 joule. Charge measured in coulomb, so I make it 1 coulomb. So how you will define this volt? How you will define this volt? So we can say कि 1 volt is the potential difference. 1 volt क्या है? Potential difference है. 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb in the electric field. Electric field word जरूर use करना है. Okay, otherwise your definition is incompleted because we are moving a charge. चार्ज को कहाँ मूव कर रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हैं. और जो ये फील्ड है कैसे क्रिएट हुई है? बिकॉज ऑफ द चार्ज प्लेस्ड. तो चार्ज है अपने अराउंड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा. सो यू आर मेकिंग दिस चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, so this whatever the work done, whatever the work you are doing, that is called your 1 joule. So once again, just see V equals to W upon Q. We are writing it W upon Q. So work done in moving a charge is called your potential difference. So when you want to define 1 volt, 1 volt is what? Volt is the SI unit of potential difference. When you want to make it defined, so how we are defining it? सो मैंने सबको क्या किया? 1 1 किया. ये भी 1 वोल्ट हो गया. जूल मेजर्ड इन, ये वर्क मेजर्ड इन जूल्स, तो इसको मैंने 1 जूल लिखा. कूलम, 1 कूलम चार्ज. सो हाउ यू आर डिफाइनिंग कि 1 वोल्ट, यू आर सेइंग कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. Okay, electrical resistance. Now just see the videos को बार बार pause करके देख लो because it is the conceptual part is very important. अगर concept समझ में नहीं आएंगे तो you are not able to do the numericals. Now see here how I am defining the resistance. Okay, resistance. Now resistance जैसे कि नाम से इसके लग रहा है means के some resistive force is working. Resistance का मतलब जो resist कर रहा है. Now for that what we have done, मैंने एक वायर लिया, एक कंडक्टिंग वायर. कंडक्टिंग वायर मीन्स के थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. ओके, कंडक्टिंग वायर मैंने लिया. अब इफ वी सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायर, अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में देखूं तो देयर आर स्मॉल स्मॉल एटम्स ऑल अराउंड. स्मॉल से एटम्स होंगे ऑल अराउंड दिस कंडक्टिंग वायर. ओके, उसमें क्या होगा? स्मॉल एटम्स. यू आर हैविंग अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? न्यूट्रॉन होंगे ऑब्वियसली. एंड देयर आर प्रोटॉन. देयर आर न्यूट्रॉन एंड देयर आर प्रोटॉन. और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? दे रिवॉल्व अराउंड. ओके, ये क्या करेंगे? दे रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस. ओके, इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहेंगे. तो सो मेनी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आर हियर. ओके, एंड इन अ सेम वे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. So the electrons which are present in the outermost shell, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? These electrons are called free electrons. Okay, these electrons are called free electrons. And what is their work? Their work is only to roam about, only to revolve. घूमते रहना है बस, यही इनका वर्क है. And they revolve, they move all around this conducting wire. फ्री हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वी आर कॉलिंग देम, दे आर फ्री. नोबडी इज देयर टू रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट. कोई नहीं है जो इनकी मूवमेंट के लिए इनको मना करे. दे कीप्स ऑन मूविंग ऑल अराउंड दिस. मूवमेंट करना ही इनका वर्क है, तो दे आर कीप ऑन मूविंग ऑल अराउंड. और मूवमेंट कैसे कर रहे हैं? दे आर चार्जेबल पार्टिकल. रिमेंबर वन थिंग, दे आर चार्जेबल पार्टिकल. और जब चार्ज मूव करता है तो इट्स डेवलप इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को डेवलप करता है, बट इनके मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज दे आर मूविंग इन अ रैंडम वे. ओके, दे आर मूविंग इन अ रैंडम वे. तो चार्ज जो करंट डेवलप हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है. एक सपोज लेफ्ट में गया तो दूसरा राइट में जा रहा है. एक ने लेफ्ट की डायरेक्शन में करंट डेवलप किया तो दूसरे ने राइट की डायरेक्शन में करंट डेवलप किया, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. तो दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो.
सो अब क्या कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, दे आर मूविंग ऑल अराउंड। सपोज एक इलेक्ट्रॉन ये है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन और है, इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन और है, इट इज मूविंग इन लेफ्ट वे, एक इलेक्ट्रॉन और है, इट इज मूविंग लाइक दिस। ओके, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, दे आर कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग, मूवमेंट करते जा रहे हैं। अब जैसे ही मैंने क्या किया, आई हैव कनेक्टेड दिस कंडक्टिंग वायर विद अ सेल और अ बैटरी, किसी सेल के साथ या बैटरी के साथ मैंने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। सपोज दिस इज अ सेल यू आर हैविंग, और वी कैन से दिस इज द बैटरी, this is the positive terminal of the battery, this is the negative terminal of the battery. Now what happen, this end will become positive and this end will become negative. Okay, एक एंड उसका पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव. नाउ व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव प्लेट. ओके, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. अट्रैक्शन कैसे होगा, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और सबकी डायरेक्शन सेम होगी. दे ऑल मूव इन अ सेम डायरेक्शन, सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके, दे ऑल मूव इन अ सेम डायरेक्शन, और यहां पे जाके अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे. पॉजिटिव से नेगेटिव जब मिलेगा, इट गेट न्यूट्रलाइज, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे. नाउ सी व्हाट हैपन नाउ, जब सारे एक साथ मूव करेंगे, दे ऑल आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन. ओके, दे ऑल आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन. जब सेम डायरेक्शन में सब एक साथ मूव करेंगे तो दे कोलाइड विद ईच अदर. ओके, दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, और ड्यू टू दिस कॉल्यूजन a resistive force is developed which is called resistance. ओके, इनके कॉल्यूजन से क्या होगा, एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगी जिसको क्या बोलेंगे आप, रेजिस्टेंस बोलेंगे. ओके, सो रेजिस्टेंस इज व्हाट, इट इज द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द कॉल्यूजन ऑफ चार्ज अमॉन्ग्स देमसेल्फ. जो चार्ज हैं जब कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से क्या होता है, रेजिस्टिव फोर्स डेवलप हो रही है. दिस रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. अब लेट अस चेक द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो को देखते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, बट द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट मूव करेगा. इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव, बिकॉज इस वाली प्लेट से दे गेट रिपेल्ड, दे आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है. इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज, ओके, हाउ टू रिमेंबर इट, याद कैसे रखना है. सपोज यू आर हैविंग टू वॉल्स, आपके पास दो वॉल्स हैं. से मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया. बीच में सम चेयर्स आर देयर. ओके, सम चेयर्स आर देयर. ऑन दिस चेयर हु सिट्स, इलेक्ट्रॉन. कौन बैठे हैं उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर सिटिंग ऑन इन दीज चेयर्स. अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बिकॉज इट गेट अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव वॉल. ओके, तो दैट मीन्स ये वाली चेयर खाली हो जाएगी. आफ्टर दिस द सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, इट मीन्स कि ये वाली चेयर खाली हो गई. आफ्टर दिस द थर्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव, इट मीन्स ये वाली चेयर खाली हो गई. तो हाउ द चेयर गेट एम्प्टी, दे आर एम्प्टीइंग इन दिस डायरेक्शन. कैसे खाली हो रही है, इस डायरेक्शन में. पहले ये वाली चेयर खाली हो रही है, फिर ये वाली खाली हो रही है, फिर ये वाली खाली हो रही है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. चेयर्स की डायरेक्शन क्या है एम्प्टी होने की, इट इज इन दिस डायरेक्शन. सो इट मींस इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा, जो डायरेक्शन चेयर्स को खाली करने वाली है उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा. तो आई की डायरेक्शन क्या होगी, दिस ये होगी, और बड़ी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज this, that means from negative to positive. So in this way you can remember. So first chapter जो हमने किया है बेटे, I will send you some questions from there that you have to do. Second chapter में अभी something more left which we have to discuss in the next class, that is tomorrow. Okay, till then, thank you very much everyone.